Hello everyone, welcome back to Biophilia's new video on part 3 of breathing and exchange of gases. So before making all the concepts very clear with this video, do like, share and subscribe to our amazing channel. So let's start today's class with the topic that is exchange of gases. और exchange of gases की बात हो रही है तो we are going to speak about gases that is oxygen and carbon dioxide. So exchange of gases होता है simple diffusion से और simple diffusion is mainly based on the pressure or the concentration gradient. अब simple diffusion होने के लिए there are some factors that are going to affect this rate of diffusion. So first factor होता है solubility of gases. अब जितना higher solubility होगा उतना fast diffusion take place होगा. So higher the solubility, faster is the diffusion. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए कैसे यूजफुल है? So carbon dioxide is going to be 20 to 25 times higher soluble than the oxygen. अब जितना ज़्यादा soluble है उतना ज़्यादा fast diffuse होगा. So carbon dioxide is going to diffuse much more faster with the reference to oxygen. अब एक यहाँ पे previous year question आया था and that point I have written down with the answer. तो वो था oxygen needs larger diffusion concentration difference with the comparison to carbon dioxide. और क्यों चाहिए उसको larger difference? Because of less solubility. Solubility कम होने की वजह से diffusion के लिए competition create ना हो. That is the reason oxygen will prefer to have a larger concentration difference to get diffused easily. सेकेंड फैक्टर अफेक्ट करता है दैट इज पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर के लिए एक थियोरी वी हैव टू रिमेंबर दैट इज ऑलवेज द गैस मूव्स फ्रॉम हाई टू लो पार्शियल प्रेशर. ओके, ये एक की टर्म है कि आपको याद रखना है कि हमेशा गैस फ्लो करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. तो लेट्स सी विद द केस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इन द एटमॉस्फेरिक एयर कितना होता है 159 mmHg, जबकि एल्वियोलाई के केस में पार्शियल प्रेशर होता है 104 mmHg. तो अब इन दोनों में से कौन सा हायर है वहां से ऑक्सीजन फ्लो करेगा. सो ऑक्सीजन इज गोइंग टू गेट डिफ्यूज्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर that is having the higher partial pressure into the alveoli with the lower pressure. So this process जहाँ से atmospheric air से oxygen diffuse होके alveoli of the lungs में आता है, that is nothing but breathing in the oxygen, that is inspiration. Third factor आता है that is thickness of the membrane. जो membrane that is separating the two mediums of the diffusion, वो thickness कैसे depend करता है? Lesser the thickness, greater is the rate of diffusion. Okay, so these were the three factors which were affecting the rate of diffusion. अब एक question देखते हैं. So the question says arrange these gases in the descending order according to the solubility in the blood. तो डिसेंडिंग ऑर्डर है यानी फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई इनमें से सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल कौन सा होगा. सो द ग्रेटेस्ट सॉल्यूबल इज गोइंग टू बी कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन लास्टली ऑक्सीजन. नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर द सॉल्युबिलिटी विथ रेफरेंस टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे कम है, राइट. सो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को कंपेयर किया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज गोइंग टू बी 200 टाइम्स मोर सॉल्यूबल, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात की जाए तो इट इज गोइंग टू बी 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्यूबल. ओके, तो ये था एक क्वेश्चन का आंसर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. Now let's see actual exchange of gases which is going to take place between the alveoli and the blood. तो alveoli कहाँ पे होता है? lungs में होता है और blood is going to come through the blood capillaries. तो these two mediums के बीच में होगा एक diffusion membrane. और diffusion membrane किससे बनता है? diffusion membrane तब बनता है when there is going to be a very thin membrane और रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज को जब साथ में मिला के व्हेन वी स्पीक दैट इज नथिंग बट डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, या फिर उसके और दो नाम होते हैं दैट इज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और द एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन. अब ये मेम्ब्रेन के होते हैं 3 layers. Now these 3 layers are thin squamous epithelium of the alveoli,
ओके, दैट इज योर लंग का लाइनिंग, फिर एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द कैपिलरीज, और ये दो लेयर्स दैट इज दीज टू मेम्ब्रेन्स के बीच में एक सब्सटेंस होता है, दैट इज द बेसमेंट सब्सटेंस विच इज गोइंग टू बी प्रेजेंट बिटवीन द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द alveoli एंड द endothelium ऑफ द alveolar capillaries. तो अभी हम देखते हैं इन द डायग्राम कि ये कहाँ पे है. सो alveolar wall जो होती है दैट इज योर epithelial cells, these are going to be one cell thick wall. ओके, फिर आती है blood capillaries का endothelium lining. ओके, that is these two becomes the membrane, और ये दो membranes के बीच में आता है basement substance. ओके, अब जब ये तीनों साथ में आएंगे we call them the diffusion membrane. अब ये तीनों के साथ में total thickness कितनी होती है? तो total thickness is going to be less than a millimeter. ओके, बट अगर specific number पूछा जाए तो it is going to be around 0.2 millimeters. अब एक क्वेश्चन देखते हैं, राइट? एक क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू कम अप over here, that is how many membranes does the oxygen have to cross to diffuse from alveoli to the blood capillaries. यानी आपस आ जाओ डायग्राम पे. डायग्राम में कहाँ पे जाना है? यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, करेक्ट? ऑक्सीजन को जाना है alveolar cavity से into the blood capillaries, डिफ्यूज होना है. So during the diffusion कितने membranes क्रॉस करेगा ऑक्सीजन? So oxygen is going to cross two membranes. ये दो two membranes का क्या नाम होगा? One will be the squamous epithelium and that is going to be the epithelium for the alveoli, और दूसरी membrane होगी of the capillaries, that is the endothelial lining होगी of the capillaries. So these are the two membranes. But अगर क्वेश्चन में पूछा जाता how many layers does the oxygen need to travel, अगर layers पूछा जाता तो then it was 3 layers. But अभी क्वेश्चन में क्या है? It is membranes. Okay, so now it becomes your duty to remember कि membrane है या layers है when you are answering the questions. अब दूसरा पार्ट आता है रिगार्डिंग एक्सचेंज बिटवीन alveoli and blood, that is partial pressures. ओके, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग अलग होंगे व्हेन दे आर गोइंग टू बी एट डिफरेंट प्लेसेस. ओके, सो ऑक्सीजन के यहाँ पे दिए हुए है कि कितना पार्शियल प्रेशर होता है एंड द यूनिट फॉर दिस इज गोइंग टू बी mmHg. वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी दिया हुआ है. एंड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज गोइंग टू बी कि इनका फ्लो कैसे होगा. So you when you go to your NCERT book or when you are writing down the notes, you have to remember to mark the flow of oxygen and carbon dioxide. और flow के लिए क्या याद रखना है? That always the gas is going to flow from high partial pressure to the low partial pressure. This is going to be your main criteria कि flow कैसे होगा, right? So this becomes your duty to understand the flow of the gases, but I'll teach you in the next slides also. So now let's see the exchange of gases between the blood and the tissues. अब यहाँ पे देखते हैं in detail how this thing goes on. तो alveolar में जो air होती है उस air में in general you are going to have the partial pressure of oxygen to be higher side और partial pressure of carbon dioxide to be on the lower side. ये हो गया when you are speaking about alveolar condition. Okay, अब alveolar के पास में जो capillaries आती है वो capillaries जब बाहर निकलेंगी they are going to have carbon डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कम होगा और ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, करेक्ट? व्हेन दे आर गोइंग टू लीव द alveoli. Okay, now once they leave they are going to go into the left atria of the heart. लेफ्ट एट्रिया से पंप होगा into the left ventricle और लेफ्ट ventricle से they will go into the systemic circulation through arteries और ये जाके पहुंचेंगी into the tissues. अब टिश्यूज का क्या कंडीशन है? टिश्यूज का कंडीशन होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी लेस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू बी मोर. अब जैसे ही ये
capillaries are going to reach to the tissues, the oxygen is going to go from the capillaries into the tissue और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा into the capillaries. अब कैपिलरीज हो गई है डीऑक्सीजनेटेड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो गई है, सो दैट अब जो कैपिलरीज जाएंगी उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा. नाउ दीज विल गो बैक टू द हार्ट into your right atria से right ventricle में पंप होगा और right ventricle से जाएगा again to the alveoli. अब alveoli की कंडीशन में जो कैपिलरीज पहुंच रही है into the alveoli, they are going to have a condition कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, so that कार्बन डाइऑक्साइड goes into the alveoli or oxygen is getting loaded into the capillaries. So this is your complete procedure कैसे होता है. Now if you want to get the exact values कि partial pressure कितना होता है, so you can go back on the slides. वहाँ पे सारे के सारे partial pressures in the table format was given to you, or even you can see in here in the diagram. यहाँ पे है alveoli के partial pressures, यहाँ पे आ जाएंगे your systemic arteries के partial pressure, यहाँ पे है systemic veins के partial pressure, that you have to remember to understand the flow of gases. अब यहाँ पे एक question आता है, that is going to be a previous year question again. Previous year questions याद रखना is very important because there is a high chance to get those questions back. Okay, so tissues की condition में when the higher concentration of CO2 is found, so there is a decreased affinity for oxygen and there is going to be a increased affinity for hydrogen. So actually question पूछा कैसे गया था कि concentration of CO2 tissues में बढ़ गया है, so correct statement ढूंढो. Okay, so I have given you the answer here, so it's better if you remember कि अगर partial pressure of CO2 बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन की अफिनिटी कम हो जाएगी और हाइड्रोजन के लिए अफिनिटी बढ़ जाएगी. ओके, so now let's see the transport of gases. Now in the transport of gases we are going to see transport of oxygen first. So transport of oxygen के लिए there are two ways. Okay, एक वे से 3% ऑक्सीजन जाएगा और दूसरे वे से 97% ऑक्सीजन जाएगा. सो द 3% ऑक्सीजन का जो रूट है दैट इज गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा और 97% जो ऑक्सीजन है इट इज गोइंग टू गेट ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ आरबीसीज व्हिच आर प्रेजेंट इन द ब्लड. करेक्ट. अब हीमोग्लोबिन जो है दैट इज गोइंग टू बी अ रेड कलर्ड पिगमेंट और ये रेड कलर्ड पिगमेंट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द आरबीसीज. अब हमें क्या याद रखना है, दैट इज हीमोग्लोबिन के पास होते हैं दो पार्ट. ओके, हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में लिखते हैं HB. ओके, H कैपिटल एंड स्मॉल b होता है हीमोग्लोबिन का शॉर्टकट. हीमोग्लोबिन के अंदर होते हैं टू पार्ट्स, दैट इज हेम एंड द ग्लोबिन पार्ट. करेक्ट. हेम पार्ट जो होता है दैट इज गोइंग टू बी आयन कंटेनिंग पार्ट, whereas the globin is going to be the protein containing part. Okay, अब oxygen is going to connect to the hemoglobin with the hem part. Okay, और ये ऑक्सीजन के साथ जब कनेक्ट होगा it is going to form the oxyhemoglobin. अब उसको लिखने के लिए you can also write HBO2. Okay, so this becomes your representation for oxyhemoglobin जो RBC से ट्रांसपोर्ट होगा. सो नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में होते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. ओके, एंड ईच पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड के लिए हम लिखेंगे PP. ओके, एवरी पॉलीपेप्टाइड चेन इज गोइंग टू हैव 4 hem part. Okay, and each hem part is going to be connected to one oxygen molecule. तो इससे हमें क्या पता चला, finally we understand एक hemoglobin से there will be 4 oxygen molecules connected.
So this is nothing but the explanation for the third point, that is a single molecule of Hb can carry maximum of 4 molecules of oxygen. Okay, अब क्या और एक चीज याद रखनी है, that is हीमोग्लोबिन को समझते हैं एज अ कार या बस या कोई व्हीकल समझते हैं. ओके, और व्हीकल का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के पास है सिर्फ 4 सीट्स. ओके, और 4 सीट्स में एल्वियोलाई से कौन आके बैठते हैं, ऑक्सीजन आके बैठते हैं. बट दिस सीट इज नॉट परमानेंट फॉर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ साथ देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड हु इज वेटिंग टू गेट इनटू हीमोग्लोबिन. ओके, तो देयर इज गोइंग टू बी अ कॉम्पिटिशन कि ऑक्सीजन जाके बैठेगा हीमोग्लोबिन के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा टू अटैच. So this is going to depend where this hemoglobin is present. If it is near the lungs, then oxygen is going to occupy. If it is near the tissues, then carbon dioxide is going to occupy. So this statement ka explanation is given you in the fourth point, that is oxygen at the higher partial pressure is going to bind to हीमोग्लोबिन, दैट इज ड्यूरिंग योर लंग कंडीशन, क्योंकि लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा टिश्यू से. ओके, एंड एज सून एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू डिक्रीज, दैट इज नियर बाय द टिश्यूज, नाउ Hb will become unstable, and when it becomes unstable the oxygen would be released to get transported into the tissues. करेक्ट. तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब टूटेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो हमने यहाँ पे बनाया था, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बॉन्ड कब टूटेगा, इट इज गोइंग टू डिसोसिएट नियर द टिश्यूज. टिश्यूज में क्यों डिसोसिएट होता है, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन एसिडिक कंडीशंस, और एसिडिक कंडीशंस इंक्रीज होने के साथ साथ देयर इज अ हाई टेम्परेचर कंडीशन. ये दो रीजंस की वजह से द oxygen and hemoglobin bond is going to break, that is going to supply oxygen to the tissues. अब और एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, that is, so let's erase this first. अब एक चीज याद रखनी है, that is nothing but the data part of the part. तो डेटा क्या याद रखना है, हीमोग्लोबिन लेवल्स इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होती है 15 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड. अभी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में होता है कैपेसिटी टू कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन. अब आर्टीरियल ब्लड में जहाँ पे ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा अमाउंट होती है, दैट इज गोइंग टू बी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड. अगर 100 ml ऑफ ब्लड में अगर 20 ml ऑक्सीजन है, सो 1 लीटर ऑफ ब्लड इज गोइंग टू हैव हाउ मच, 200 ml ऑफ ऑक्सीजन. और हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में देयर इज गोइंग टू बी 5 लीटर्स ऑफ ब्लड ऑन एवरेज. तो फाइनली 5 लीटर ब्लड में होता है 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन. करेक्ट. तो दिस इज सम ऑफ द मेजर पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि इस पे ये डेटा पे यू कैन गेट सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. अब यहाँ पे एक और चीज देखनी है, दैट इज अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑक्सीजन लेवल्स इज गोइंग टू ड्रॉप टिल 14.4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड. स्टार्टिंग में था 20 ml, ड्रॉप होके हो गया 14.4. दैट इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल कंडीशंस में 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी सप्लाइड टू द टिश्यूज. But when the organism is undergoing some vigorous exercise, तो उस टाइम पे टिश्यूज को मेटाबोलाइज होने के लिए there is going to be a larger demand for oxygen. तो उस टाइम पे oxygen levels can drop up to 4.4 ml per 100 ml of blood. That means the blood is going to supply 15 ml of oxygen to the tissues. Correct? So this was some of the data based knowledge that you had to remember. Let's now see a very important topic, that is oxygen dissociation curve. Oxygen dissociation curve एक graphical representation होता है between the partial pressure of oxygen and the percentage of saturation of hemoglobin with oxygen. जब ये दो parameters को graphically represent किया जाता है, that is nothing but oxygen dissociation curve या फिर oxygen hemoglobin dissociation कर्व. इसको समझने के लिए देखते हैं वापस हमारी हीमोग्लोबिन की गाड़ी.
ओके, ये आ गई हमारी हीमोग्लोबिन की गाड़ी जिसके पास थे 4 सीट्स फॉर ऑक्सीजन जो लंग्स में से आ रही थी. ओके, now there is a condition that is dissociation of these oxygen molecules. Okay, after the dissociation कुछ oxygen molecules रह जाते हैं and these are going to be left in your hemoglobin और ये बनाएंगे the saturation of hemoglobin. Okay, अब dissociation कब होगा? When there is going to be a need for oxygen in the tissues. Okay, dissociation होके ये कहाँ जाएंगे? tissues में जाएंगे. So if there is a dissociation, अगर नहीं हो रहा है, okay, there is zero dissociation of oxygen molecules, then total कितने बच जाएंगे hemoglobin में? 4 oxygen molecules रह जाएंगे. That is going to make 100% saturation. ओके, अगर समझो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट हो जाता है तो कितने बच जाएंगे? 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे. सो डिसोसिएशन परसेंटेज कितना हुआ? 25% और कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ? 75%. वैसे ही अगर 2 डिसोसिएट हुए तो इट विल बी 50% डिसोसिएशन और 2 रह जाएंगे, दैट इज 50% सैचुरेशन. वैसे ही अगर 3 निकल जाए तो दैट विल बी 75% डिसोसिएशन और 1 रह जाएगा, दैट इज 25% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. अब सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर को जब हम डिवाइड करते हैं वो हमें देता है एक सिग्मॉइड शेप्ड कर्व और a S-shaped curve, that is nothing but oxygen dissociation curve. अब ये कर्व डिपेंड करता है on partial pressure of oxygen and the percentage of saturation. For example, अगर hemoglobin is showing 50% saturation, okay, 50% saturation है मतलब hemoglobin में कितने molecules of oxygen है? Hemoglobin is going to have 2 molecules of oxygen left और 2 molecules of oxygen तब रह जाते हैं when there is a partial pressure of 25 mm Hg. Correct? So now let's locate it on the graph. ग्राफ में से can we get this data? So here comes our 50% saturation of the hemoglobin. अगर इसके coordinates, if we try to get up till the S-shaped curve or when we come down from here, so we land on the partial pressure zone, that is going to be 25 mm Hg of partial pressure. Okay, वैसे ही from this curve you can identify the percentage of saturation on different partial pressure zones. Okay, अब यहाँ पे हमें और एक चीज देखनी है, that is going to be the dissociation कितना होगा on what basis. Okay, so let's see कि एक condition लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं. So first will be the condition, okay, और second टेबल के इसमें बनाते हैं the dissociation, okay, and after the dissociation we will make the left column. Okay, और ये लेफ्ट किस में होंगे? लेफ्ट इन द हीमोग्लोबिन और डिसोसिएट कहाँ होंगे? इनसाइड द टिश्यूज. ओके, अब ये बनाते हैं, टेबल कंप्लीट करते हैं. सो द कंडीशन एट द एल्वियोलर स्टेज. ओके, एल्वियोलर में डिसोसिएशन तो होगा नहीं, करेक्ट. सो द कंप्लीट ऑक्सीजन लेफ्ट इज गोइंग टू बी 100%. अब अगर ऑर्गेनिज्म इज एट रेस्ट तो डिसोसिएशन कितना होता है? 25%. और अगर 25% टिश्यूज को दे दिया तो हीमोग्लोबिन के पास कितना बचा? 75%. इफ द ऑर्गेनिज्म इज अंडरगोइंग माइल्ड एक्सरसाइज, ओके, या फिर माइल्ड कोई काम कर रहा है, व्हेन देयर इज अ बिट मोर बट नॉट हाई डिमांड फॉर ऑक्सीजन, तो होगा 50% डिसोसिएशन और 50% डिसोसिएट होने के बाद 50% रह जाएगा, दैट इज 50% सैचुरेशन. अगर the organism is undergoing vigorous or strenuous exercise, then what can be the condition? 75% ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाएगा और 25% will be left in the hemoglobin. तो ये टेबल is very important to solve some numericals. So let's see one of the example. Example में एक यहाँ पे numerical आया है, that is a person is at rest. ओके, यहाँ पे हिंट मिला है पर्सन इज एट रेस्ट. नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द ऑक्सीजन लेफ्ट इन द ब्लड.
Now you have to focus on each and every word. Okay, oxygen left in the blood after the supply to the tissues. अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? I have given you the table कि रेस्ट कंडीशन में कितना हीमोग्लोबिन के पास रह जाता है और कितना डिसोसिएट हो जाता है. सो यूजिंग दिस डेटा एंड द डेटा कि 1 लीटर ब्लड के अंदर होता है 200 ml ऑफ ऑक्सीजन. यूजिंग दिस डेटा एंड द डेटा एट रेस्ट कितना परसेंट रह जाता है, दैट इज लेफ्ट इन हीमोग्लोबिन कितना होता है 75%. Now using these two data you can identify 75% of 200 ml is going to be 150 ml. So this is your answer. This is going to be the volume of oxygen left in the hemoglobin after supply. ओके अगर उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता कि कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द टिश्यू, तो क्या आंसर आता? आंसर आता 50 ml इज सप्लाइड टू टिश्यू. ओके उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट. Now what can be the variants for this question? Instead of at rest आपको बोल दिया the person is undergoing mild exercise. 1 लीटर की जगह पे आपको बोल दिया 5 लीटर के लिए कैलकुलेट करो. सो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन कैलकुलेट योर आंसर्स. नाउ लेट्स सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैन हैव अ टेंडेंसी टू शिफ्ट राइट और इट कैन शिफ्ट लेफ्ट. ओके अब ये याद रखने के लिए कि शिफ्ट राइट है या शिफ्ट लेफ्ट है, लेट्स अंडरस्टैंड द थियरी फर्स्ट. Then I'll tell you the trick to remember. So dissociation of the oxygen is going to indicate कि oxygen dissociation curve is going to shift right. और ये dissociation कहाँ होता है? At the tissues level. अब इसको कैसे याद रखें? You can remember कि बोहर इफेक्ट करके एक इफेक्ट होता है. बोहर का एंड होता है R से. R से आता है राइट शिफ्ट और राइट का एंड होता है T से, that is tissues. Okay, so like this you can remember कि ये चीजें are going to be for right shift. तो what are the conditions that are going to favor right shift? तो पहला होता है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. अब सबको पता है टिश्यूज के केस में क्या होता है. टिश्यूज के केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाता है. दिस इज नथिंग बट सेम एज यू नो, राइट. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया. तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बढ़ेगा एसिडिक कंडीशंस आएंगे और हाई टेम्परेचर हो जाएगा. और टिश्यूज में क्या होता है? टिश्यूज में होता है ग्लाइकोलिसिस. ओके दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ग्लाइकोलिसिस से एक प्रोडक्ट आता है दैट इज DPG. और DPG का क्या फुल फॉर्म होता है? डाइफॉस्फोग्लिसरिक. ओके डाइफॉस्फोग्लिसरडिहाइड, ये होता है DPG का full form. So this is going to be a byproduct of the glycolysis that is happening in RBCs. Okay, तो RBCs में glycolysis होने की वजह से there is going to be excess of this DPG. That is also going to favor for the right shift of the oxygen dissociation curve. अब यहाँ पे और एक point आता है that is Bohr's effect is going to be applicable. ओके अभी के लिए बोहर्स इफेक्ट एप्लीकेबल होता है, ये याद रख लो. वी विल अंडरस्टैंड द बोहर्स इफेक्ट लेटर ऑन. अब देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट की तरफ. लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है? इट इज गोइंग टू इंडिकेट द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन. और ऑक्सीजन का एसोसिएशन कब होता है? एट द एल्वियोलर ऑफ द लंग्स की जगह पे होता है एसोसिएशन. तो लेफ्ट शिफ्ट को याद रखने का सिंपल तरीका होता है लेफ्ट यानी L से स्टार्ट हो रहा है दैट इज लंग्स. और लंग्स की कंडीशन कैसी होती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लोअर. तो वैसे ही दीज कंडीशंस विल क्रिएट लेफ्ट शिफ्ट दैट इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. और जब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा बाकी सारे वैल्यूज होंगी लो. ओके एक बार पता चल गया ऑक्सीजन ज्यादा है यानी बाकी के सारे होंगे कम.
ओके, और अपोजिट कंडीशन होगा फॉर द राइट शिफ्ट। अब यहाँ पे याद रखना है कि लेफ्ट शिफ्ट में आता है हाल्डेन्स इफेक्ट। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाल्डेन्स इफेक्ट इन द लेटर ऑन द स्लाइड्स। तो यहाँ पे डायग्राम में यू कैन जस्ट गेट अ समरी कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑफ द कर्व कैसे होता है। सो द ब्लैक वन इज गोइंग टू बी योर ओरिजिनल कर्व और राइट शिफ्ट का कर्व हो जाएगा विद द रेड कलर। ओके, और यहाँ से ब्लू कलर से बना दिया द लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द कर्व। करेक्ट। आई होप ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा एंड यू हैव रिमेम्बर्ड इट अलोंग विद द वीडियो इटसेल्फ, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है डिसोसिएशन कर्व फॉर हीमोग्लोबिन ऑफ फीटल एंड हीमोग्लोबिन ऑफ एडल्ट। तो फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है इट इज गोइंग टू बी समवट डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट हीमोग्लोबिन। ये कैसे डिफरेंट होता है? इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन इट्स स्ट्रक्चर एंड द एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन फीटल के केस में होगी ज्यादा, and because of there is higher affinity for oxygen in the fetal hemoglobin, there is going to be a different type of curve, और ये curve oxygen dissociation curve is going to shift towards left side, क्योंकि हमें पता है कि जब affinity for oxygen बढ़ जाती है वो shift कहाँ होता है? left side पे। So you can remember this कि फीटल हीमोग्लोबिन का कर्व एडल्ट के केस में फीटल कर्व होगा लेफ्ट साइड पे और एडल्ट का कर्व होगा राइट साइड पे। सो यू कैन सी इन द फिगर नंबर 1 द ग्राफ, यू कैन सी जो रेड कलर से है द रेड कलर इज गोइंग टू बी फॉर द एडल्ट हीमोग्लोबिन केस और जो ब्लू वाला है दैट इज गोइंग टू बी फॉर द फीटल हीमोग्लोबिन केस। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जैसा ही होता है बट इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द मसल्स और मसल्स के लिए वर्ड यूज होता है मायो। ओके, सो मायोग्लोबिन का क्या है अलग? इट इज गोइंग टू हैव मोर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ओके, मोर अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन है बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? मायोग्लोबिन के पास होता है सिर्फ 1 Fe ग्रुप। ओके, ओनली 1 हेम ग्रुप होता है, जबकि हीमोग्लोबिन के पास कितने होते हैं? 4 हेम ग्रुप्स होते हैं, दैट इज 4 Fe2+ ग्रुप्स होने की वजह से वो हैज अ मोर कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन। बट मायोग्लोबिन की अफिनिटी ज्यादा है पर कैरी करने की कैपेसिटी कम है, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टर्न्स टू बी अ हाइपरबोलिक कर्व। तो in the figure you can see in the figure or you can say in the graph 2 myoglobin जो होगा myoglobin is going to be represented by the blue colored curve और जो red color से होगा that is going to be your hemoglobin curve। okay, so I hope ये दो extra cases जो थे that may come to your exams and you have understood it well। Now let's see the transport of carbon dioxide। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होने के 3 मेथड्स हो सकते हैं। फर्स्ट इन द डिसॉल्व्ड स्टेट दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लाज्मा। सेकेंड होता है एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंपाउंड बनाता है। एंड थर्ड फॉर्म इज बाइकार्बोनेट आयंस। सो नाउ लेट्स सी about dissolved state first। तो dissolved state के बारे में when you are studying you know that carbon dioxide का 7% transport होगा and the dissolved state। So write it down in your books or somewhere कि dissolved state से carbon dioxide जाता है 7%। अब एक question यहाँ पे arise होता है that is अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू डिसॉल्व्ड स्टेट इट गोज बाय 3% ऑफ इट्स क्वांटिटी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड 7 है और ऑक्सीजन 3%, ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर सॉल्युबिलिटी। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से उसका डिसॉल्व कंडीशन में ट्रांसपोर्ट होना इज मच ईजियर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। उसकी वजह से द परसेंटेज वेरीज।
सेकेंड फॉर्म होता है एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये फॉर्म में से अबाउट 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। सो क्या होता है ये स्टेट में, हीमोग्लोबिन दैट इज Hb के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाता है दैट इज गोइंग टू फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड लाइक HbCO2। अब हीमोग्लोबिन के कौन से पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है, इट इज गोइंग टू अटैच टू द ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। जबकि हम अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखें थ्रू हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन इज गोइंग टू गेट ट्रांसपोर्टेड बाय अटैचिंग टू द हीम पार्ट, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है टू द प्रोटीन ग्लोबिन पार्ट। ओके, सो ये दोनों का डिफरेंस है। अभी यहाँ पे याद रखना है ये जो HbCO2 कंपाउंड बना है दैट इज गोइंग टू बी अ रिवर्सिबल कंपाउंड, वो आगे जाके टूट के अगेन कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिलीज्ड। थर्ड फॉर्म होता है एज बाइकार्बोनेट आयंस, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाइकार्बोनेट आयंस को हम कैसे लिखते हैं, HCO3 माइनस। अब बाइकार्बोनेट आयंस जो होती है दे आर गोइंग टू गेट ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा। अब ये बाइकार्बोनेट आयन कैसे बनते हैं, दैट इज जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज के पास बढ़ जाता है, एट दैट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू डिफ्यूज इनटू द आरबीसी, और आरबीसी में होता है वाटर। Okay, as soon as carbon dioxide and water comes together in the presence of carbonic anhydrase enzyme, एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पे देखो नोट्स में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस को हम यहाँ पे लिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट दैट इज Ca। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे इट इज गोइंग टू गिव यू H2CO3, और H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड होता है अनस्टेबल, इट कैन नॉट रिमेन एज इन इट्स फॉर्म, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू H+ एंड HCO3 माइनस, और हमें पता है HCO3 माइनस ही होता है बाइकार्बोनेट आयंस, करेक्ट। तो अभी ये CO2 आरबीसी में क्यों पहुंचता है, व्हेन कार्बोनेट आयंस जो है देज आर गोइंग टू गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लाज्मा। रीजन ऐसा होता है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है इट इज गोइंग टू बी इन हायर क्वांटिटी एंड इट हैज अ ग्रेटर कैपेसिटी इन द आरबीसीज। प्लाज्मा में भी ये एंजाइम मिलता है बट ग्रेटर अमाउंट और हायर एफिशिएंसी होती है इनसाइड द आरबीसी, जिसकी वजह से द बाइकार्बोनेट ions are formed in RBC but transported by plasma. Okay. अभी ये तो थे 3 methods how the carbon dioxide gets transported. Now let's see one question out here. अभी क्या question है? Question is what is the percentage of carbon dioxide in plasma? जब प्लाज्मा से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा व्हाट इज द परसेंटेज, सो इट इज गोइंग टू बी 77% of carbon dioxide gets transported by plasma. अभी 77% कैसे आया, first is going to be 7% as per the dissolved state, correct, and rest of the 70% is going to be because of HCO3 minus ions जो भी जाते हैं प्लाज्मा से, राइट। सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि अगर परसेंटेज ऑफ CO2 इन प्लाज्मा दिखे वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट चूज 7%, वो डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा है। सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि वो सिर्फ डिसॉल्व्ड पूछ रहे हैं या एंटायर वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा पूछ रहे हैं, क्योंकि HCO3 minus B is nothing but a form of carbon dioxide. So you have to calculate the 70% for this calculation. Okay. अब हम देखते हैं factors affecting binding of carbon dioxide. So factors में पहला आता है कि partial pressure कहाँ पे किसका ज़्यादा है, right? अगर tissues की बात हो रही है तो tissues is going to have high partial pressure for carbon dioxide and low pressure for
ऑक्सीजन, और ये कंडीशन कहाँ होती है, टिश्यूज में होती है, राइट। तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू अटैच विथ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अगर वो हम देख रहे हैं नियर द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के पास में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होगा कम, ओके, और ऑक्सीजन का प्रेशर होगा ज्यादा, एंड दिस कंडीशन इज सीन इन एल्वियोलाई। तो उस टाइम पे ऑक्सीजन इज गोइंग टू बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, करेक्ट। तो डिपेंड करता है कि वेयर पार्शियल प्रेशर इज मोर फॉर द गैस, उस हिसाब से वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेंगे। नाउ यहाँ पे एक डेटा यहाँ पे याद रखना है, डेटा इज दैट under normal conditions we had seen कि approximately 4 ml of carbon dioxide is delivered to the alveoli per 100 ml of blood, जबकि हम बात कर रहे थे for oxygen, okay, when we spoke about oxygen, तो oxygen के केस में हो रहा था 5 ml per 100 ml of blood, जबकि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इट इज 4 ml per 100 ml of blood, ओके। तो ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। Now let's see to a very important phenomena जो होता है हैमबर्गर फिनोमिना, जिसको हम क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं। So what is this? This is going to be a effect जो हमें बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में जब CO2 ट्रांसफर होता है, at that particular time you have to understand this phenomena. So let's try to understand ये कैसे होता है। So first let me show you कि कार्बन डाइऑक्साइड जब RBC के अंदर आता है, so let's make RBC first। तो ये रेड कलर से बाउंड्री से बना दिया RBC, RBC के बाहर क्या होगा, प्लाज्मा होगा, करेक्ट, और आप RBC ब्लड में से, ब्लड कैपिलरी से आया है, सो लेट्स मेक दिस कैपिलरी वॉल, ओके। कैपिलरी वॉल के अदर साइड पे क्या होगा, यहाँ पे होंगे टिश्यूज, करेक्ट, और टिश्यूज के अंदर जैसे ही ब्लड से ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकोज विल बी कैटाबोलाइज्ड एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट। टिश्यूज ने हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, जिसमें से हमने 7% जो था वो हमने प्लाज्मा में डिसॉल्व कर दिया, करेक्ट। उसमें से बचा हुआ 23% जो था वो हमने कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाया, और अभी हमें पढ़ना है अबाउट द 70% ऑफ द ट्रांसपोर्ट जो होता है HCO3 माइनस यानी बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, करेक्ट। अभी यहाँ पे हम बना देते हैं एल्वियोलाई, जहाँ पे लंग्स के केस में जाके ये RBC पहुंचेगा तो क्या इफेक्ट होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पे देखो, पहले कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगा इनटू द RBC, सो RBC में पहुंच गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू गेट कंबाइंड विथ वाटर, वाटर से कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस के साथ जैसे ही ये रिएक्शन होगी, दैट इज गोइंग टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड होता है अनस्टेबल, और जैसे ही वो अनस्टेबल है, दैट इज गोइंग टू ब्रेक टू फॉर्म H+ एंड HCO3 माइनस। HCO3 माइनस होते हैं हमारे बाइकार्बोनेट आयंस। अब जैसे ही ये रिएक्शन इतनी फास्ट होगी, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का 70% RBC में आ रहा है, सो दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ HCO3 माइनस। और जैसे ही HCO3 माइनस RBC के अंदर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या होता है, प्लाज्मा का जो कॉन्सेंट्रेशन है HCO3 माइनस के लिए वो कम होता है। सो दिस HCO3 माइनस इज गोइंग टू गो आउट ऑफ द RBC, करेक्ट। वो जैसे ही RBC से बाहर जाएगा, इट इज गोइंग टू मीट वन मोर आयन, दैट इज गोइंग टू बी सोडियम आयन। तो सोडियम आयन के साथ जैसे ही वो रिएक्ट करेगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म NaHCO3 यानी बाइकार्बोनेट सॉल्ट बनाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्ट इज गोइंग टू बी अ स्टेबल कंपाउंड, ओके। तो वो टेम्परेरी इनसाइड द प्लाज्मा वो कंपाउंड बना के नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब जैसे ही HCO3 माइनस बाहर जाके सॉल्ट बनाएगा, RBC के अंदर
आयन का इम्बैलेंस हो जाएगा, और जैसे ही आयन इम्बैलेंस होगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन, प्लाज्मा में से जो क्लोरीन आयन था, क्लोरीन आयन आएगा इनसाइड द प्लाज्मा। ओके, जैसे ही क्लोरीन आयन अंदर आएगा, कब आएगा, जब HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस बाहर जाएंगे, एंड दिस एक्सचेंज HCO3 की जगह पे क्लोरीन का अंदर आना इज नथिंग बट कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। करेक्ट, ये होता है क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमिनन। अब जैसे ही क्लोरीन आरबीसी के अंदर आएगा, नाउ दिस इज एन आयन, an ion cannot stay alone, it is going to attract another cation, तो वो K+ के साथ सॉल्ट बनाएगा, दैट इज KCl। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, दैट इज HCO3 का तो हमने सॉल्ट बना दिया इन द प्लाज्मा, बट स्टिल अनस्टेबल कंडीशन में जब बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड जब टूटा था, वो H+ भी रिलीज किया था। ना H+ इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल प्रोटॉन, और वो पूरे आरबीसी में हलचल मचा देगा। अब जैसे ही ये हलचल मचाएगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ हीमोग्लोबिन। करेक्ट, हीमोग्लोबिन के साथ जैसे ही H+ आएगा, इट इज गोइंग टू अटैच एंड फॉर्म H+HP, यानी एसिडिक हीमोग्लोबिन बनाएगा, और ये एसिडिक हीमोग्लोबिन की वजह से जो pH होता है, दैट इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम 7.4 टू 7.34। ओके, अब ये जो चेंज होता है, दिस चेंज इज गोइंग टू बी स्लाइटली एसिडिक। ओके, अब ये स्लाइटली एसिडिक क्यों होता है, दिस इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ एसिड बफर्स जो होती है। ओके, ब्लड के अंदर बफर्स होते हैं, सो बिकॉज ऑफ दिस बफर्स pH सडनली चेंज नहीं होता है, इट इज गोइंग टू बी अ स्लाइटली एसिडिक रिएक्शन। अगर एसिडिक ज्यादा हो गया तो क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी सम प्रॉब्लम्स इन द आरबीसी, इसलिए बफर्स जो होते हैं दे आर गोइंग टू stabilize the pH conditions। करेक्ट, तो ये था एक एम्स लेवल क्वेश्चन कि अगर आरबीसी के अंदर H+ कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन के साथ, तब भी pH इज मेंटेन्ड। सो दिस कैन बी योर असर्शन, रीजन में हो सकता है दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द बफर्स इन द ब्लड। तो हमारा ऑप्शन होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऑन दिस फिनोमिनन। अब हम देखते हैं ये सारे जो रिएक्शंस हमने देखे, दीज वर हैपनिंग व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज ग्रेटर, यानी आरबीसी जो था वो टिश्यूज के पास में था। नाउ वी विल सी अनदर क्वेश्चन, अनदर फेज जहाँ पे आरबीसी पहुंच जाता है ऐसी एरिया में जहाँ पे partial pressure of oxygen बढ़ने लगता है। Now once the partial pressure of oxygen starts to increase, पहली बात क्या होती है, जो H+HB बना था that is going to break and release H+ और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ही प्रोटॉन रिलीज होगा वो हलचल मचाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस अनस्टेबिलिटी इन द आरबीसी पहले जाके टूटेगा KCl, और KCl जैसे ही टूटेगा इनटू K+ एंड Cl-। अब Cl- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा इनसाइड द आरबीसी। अब वापस आयन इम्बैलेंस हो जाएगा। अब क्या होगा, जो Cl- आरबीसी में बने थे वो एक एक करके बाहर निकलने लगेंगे। ओके, Cl- गोज आउट ऑफ द आरबीसी, और जैसे ही Cl- बाहर जाने लगेंगे तभी के तभी जो हमारा NaHCO3 सॉल्ट जो बना था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा टू फॉर्म Na+ आयंस, और वो रिलीज करेगा बाइकार्बोनेट आयंस। अभी ये बाइकार्बोनेट आयंस बढ़ जाएंगे प्लाज्मा में ज्यादा है, बाइकार्बोनेट आयंस ज्यादा हो गए, और क्लोरीन आरबीसी के अंदर ज्यादा हो गया, तो क्लोरीन जाएंगे बाहर, बाइकार्बोनेट आयंस आएंगे अंदर। अब ये जो शिफ्ट होता है इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ओके, जहाँ पे क्लोरीन जाएगा आरबीसी से बाहर और बाइकार्बोनेट्स आएंगे आरबीसी के अंदर, एंड दिस रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट तब होता है व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, जबकि क्लोराइड शिफ्ट तब होता है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
increases. करेक्ट, तो ये दोनों का डिफरेंस था. तो अब जैसे ही बाइकार्बोनेट आयंस आरबीसी के अंदर आएंगे, they are going to again combine with the H plus ions. H plus ions के साथ जैसे ही combine होंगे, they are going to again form carbonic acid. Carbonic acid is going to break in the presence of कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम से ब्रेक होंगे एंड देन इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अगेन. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही रिलीज होगा आरबीसी के अंदर, टिल दैट टाइम द ब्लड हैज रीच्ड नियर द एल्वियोलाई. तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा इनसाइड द एल्वियोलाई, जिससे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंप्लीटेड. तो टिश्यूज से लेकर एल्वियोलाई तक पहुंचने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ये सब फिनोमिनन से ट्रैवल करना पड़ता है, राइट. सो दिस वाज अ कंप्लीट explanation for Hamburger phenomenon, that is also called as chloride shift. अब ये सारा क्यों हुआ क्लोराइड शिफ्ट वगैरह, दैट वाज जस्ट फॉर वन रीजन, दैट इज पीएच बैलेंस. पीएच बैलेंस और आयंस का बैलेंस मेंटेन करने के लिए ऑल दिस फिनोमिनन वर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, करेक्ट. So I have tried to explain this Hamburger phenomenon in this diagrammatic form, जहाँ पे you can take a screenshot of this and you can make it in your own notebooks or in your own copies, wherein you can understand this phenomenon very clearly, right. Now let's understand Bohr's effect and Haldane's effect. तो बोहर्स इफेक्ट को याद रखने के लिए यू कैन रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, और हाल्डेन्स इफेक्ट के लिए ये स्टेटमेंट. अब दोनों स्टेटमेंट्स जो है दे लुक वेरी सिमिलर, बट देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस. डिफरेंस ऐसे आता है कि बोहर्स इफेक्ट जो होता है दैट इज रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए एप्लीकेबल होता है बोहर्स इफेक्ट, और ये ट्रांसपोर्ट फाइनली कहाँ पहुंचेगा, इट इज गोइंग टू रीच द टिश्यूज, करेक्ट. फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के लिए एप्लीकेबल हाल्डेन्स इफेक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट होना है इनटू द एल्वियोलाई प्रेजेंट इन द लंग्स. अब ये ट्रांसपोर्ट एग्जैक्टली कैसे होता है, व्हाट चेंजेस ऑकर्स, लेट्स सी दैट. तो यहाँ पे ग्राफ बनाया दैट वाज हैविंग ऑक्सीजन कंटेंट इन द ब्लड रिप्रेजेंटेड इन द वाई एक्सिस, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिखाया इन द एक्स एक्सिस. A graph plot किया, यहाँ पे you had low pressure and high pressure for oxygen that was in lungs and tissues, correct. अब जब ये graph plot किया गया and the coordinates were marked, you got a sigmoid shaped curve. अब जब partial pressure of oxygen carbon dioxide बढ़ा दिया गया, then what was the condition, there was a right shift in the curve. जैसे ही वैल्यूज मिले, ग्राफ जब नया बनाया गया, देयर वाज अ राइट शिफ्ट इन द कर्व. अब जैसे ही राइट शिफ्ट हुआ, क्या चेंजेस आए, लेट्स सी दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब नॉर्मल कंडीशंस में ग्राफ बनाया गया, तो विद द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन कंटेंट दैट वाज इन द लंग्स एंड दैट वाज सीन इन द टिश्यूज, ओके, दोनों का जो डिफरेंस निकाला गया, दैट वाज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड, ओके. This was the amount of oxygen transported in the initial condition, correct. अब जब right shift होने के बाद जब calculate किया गया, तो at low pressure conditions coordinates mark किए गए, तो what was seen, it was seen कि oxygen जो levels है that had been decreased in the blood after the transport, यानी टिश्यूज को ज़्यादा ऑक्सीजन मिला. कितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिला, so this was the difference, this was the amount of oxygen extra supplied, okay, this was your extra oxygen supplied under the high carbon dioxide conditions, correct. So with this you can understand कि extra partial pressure of carbon dioxide की वजह से ऑक्सीजन की वैल्यूज कैसे चेंज होती है. Now let's see about the Haldane's effect. Haldane's effect में क्या होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में जब मिले थे एंड द लंग्स कंडीशन विच इज हैविंग लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब दोनों का कंटेंट का डिफरेंस निकाला गया, दैट गेव अस द आइडिया कितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हुआ था टू द alveoli. So this was your CO2 amount given to the lungs, correct? इतना हमने दिया to the lungs in the original conditions. अब जब partial pressure of oxygen बढ़ा दिया in the lungs, तो हमारा ग्राफ बन गया that was represented by the blue color. तो अब हमें क्या पता करना है यहाँ पे, again the difference in the carbon dioxide contents. तो वापस हमने देखा लो partial pressure conditions पे कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल्स कितनी थी. With that you understood the difference कि टिश्यूज से लंग्स तक पहुंचने के लिए कितना डिफरेंस आया. So this was the amount for the new difference. अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हुआ, सो दिस इज योर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड. ओके, सो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हुआ मतलब बॉडी में से ऑक्सीजन की ज़्यादा प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाज मोर रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी. सो दिस गिव्स अस हाल्डेन इफेक्ट. जब एक्स्ट्रा CO2 बाहर निकलेगा और अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है that is transported to the tissues, then the Bohr's effect is applicable, correct? So this brings us to the end of this video. I hope this all concepts were very clear. Now I'll come back with one more amazing session covering the disorders and the regulation of the respiratory system in the next video. Till then you have to like, share, subscribe to our amazing channel and do hit the bell icon so that you can get notified with the next video. Thank you for now. Stay safe, stay smiling and keep studying. Thank you.